Hello everyone, welcome to MR Learning Circle. I hope you all are fine. Today is the fourth day of our 20 days crash course series of GATE Microbiology. Our today's topic for discussion is prokaryotic cell structure and function, along with a special focus on the cell wall of the microorganisms. Now let's start with our session. Question number 1. Which of the following cellular structures are absent in eukaryotes and are present at least in some prokaryotic organisms? Absent in eukaryotes and present in some prokaryote organisms. So your options given here are respiratory enzymes, ribosomes, nucleoid, internal membrane and pili. The given options are option A 3 and 5, that means nucleoid and pili. Option B 1 and 4, that means respiratory enzymes and internal membranes. Option C 1, 3 and 5, that is respiratory enzymes, nucleoids and pili. Option D nucleoid and internal membrane. So your correct answer for this question is option A nucleoids and pili. They are absent in eukaryotes and present in some of the prokaryotic organisms. Now, next question. Granules are inclusions found in bacteria. Which of the following statements are true about granules? Statement 1. Granules can be storage vessels for carbohydrates or lipids. Statement 2. Some granules supply substance for variety of metabolic processes. Statement 3. Granules are dissolved in cytoplasm. Statement 4. Granules are membrane enclosed structures. So your given options are option A 2 and 3, option B 3 and 4, option C 1 and 2, option D 1 and 3. Correct answer for this question is option C, that is 1 and 2. That means granules can be storage vessels for carbohydrates or lipid, and some granules supply substances for a variety of metabolic processes. Next question. This is about the match the following. In the first group, your cell organelles are given, and in the second group, their function. First, Golgi apparatus, next is nucleolus, next is peroxisomes, and the other one is proteosomes. Your correct option for this question is option B. Now let's match. P is Golgi apparatus is for protein sorting. Nucleolus is for ribosomal RNA synthesis. Peroxisome is for lipid degradation, and proteasome is for protein degradation. Okay. Now next question. Choose the correct match for structural component of bacteria to their function. This is also match the following. In the first group, structural component is given, and in the other group, their function. The first is flagella, next is cell wall, third one is metachromatic granule, and the last one is magnetosomes. The correct option for this question is option B. Now let's match. Flagella helps in chemotaxis, that means option 2. Cell wall prevents cell lysis, option 1. Metachromatic granules are used in for storage of ATP, and magnetosomes are for cell orientation. Okay. Now in this chart, the bacterial structure and their function is given. So plasma membrane, it is a selectively permeable membrane. It is a mechanical boundary of cell. Okay, just remember their function. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया, उधर दूसरे साइड एक ग्रुप में लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी तरफ लिखा है
is a mechanical boundary of cell. Then you have to, अब इस लेवल पे नहीं एग्जाम रह गया कि कोई देगा selectively permeable membrane, लिख दिया mechanical boundary of cell, ओके या लिख दिया नेक्स्ट क्या है nutrient and waste transport, यहीं से होता है, ये लिख दिया is used for nutrient and waste transport, ठीक, या लोकेशन ऑफ मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, कई सारी चीजें होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, अब ज्यादा चांसेस कौन से ऑप्शन के आने के लिए, या तो मैकेनिकल बाउंड्री हो गया, देखो ये पहला वाला तो नहीं आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको पता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, तो अब आ क्या सकता है, या तो ये मैकेनिकल बाउंड्री ऑफ द सेल दे देंगे, या न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, या इट इज अ लोकेशन ऑफ मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेस, कौन कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, और नेक्स्ट क्या ऑप्शन दिया है, डिटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल क्यूज फॉर कीमोटैक्सिस, ठीक, ये ऑप्शन आने के भी बहुत चांसेस हैं। तो अब सरफेस स्टडी से कुछ नहीं होने वाला है, एक बार थोड़ा डिटेल में देख लो, हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अब छोटे बच्चों को भी पता है जो 10th-12th में है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक। नेक्स्ट क्या ऑर्गेनेल है, सेल गैस वैक्यूल, gas vacuole, what is gas vacuole, it is an inclusion that provides buoyancy for floating in aquatic environment, ऑप्शन आ गया, cell gas vacuole is used for buoyancy या for floating of organism, चलो buoyancy भी नहीं दे दिया, cell vacuole is used for floating, इतना दे दिया, ठीक है समझ आ गया। अब आओ next is ribosome easy protein synthesis, now inclusions are used for storage of carbon, phosphate and other substance, जो भी storage से related होगा वो किस में होगा, inclusion में। Next is nucleoid, it is used for the localization of genetic material, DNA है तो DNA, RNA है तो RNA, ठीक, nucleoid। Now next is periplasmic space, in gram negative bacteria it contains hydrolytic enzymes and used for binding proteins for nutrient processing। अब देखिए, अब क्वेश्चन दे दिया पेरिप्लाज्मिक स्पेस इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन दे दिया बाइंडिंग, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इट इज यूज फॉर बाइंडिंग प्रोटीन्स फॉर न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग, तो इससे मैच कर देना, या मल्टीपल ऑप्शन में आ गया, ठीक है, MSQ में आ गया, इट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इट इज यूज फॉर बाइंडिंग प्रोटीन्स फॉर न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग एंड अपटेक, ठीक, तो दोनों मार्क करना पड़ेगा। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या करते हैं, इट मे बी स्मॉलर और एब्सेंट, होगा तो छोटा सा होगा किसी मतलब का नहीं, या तो एब्सेंट होगा। नेक्स्ट इज सेल वॉल, सेल वॉल का काम क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑस्मोटिक स्ट्रेस एंड हेल्प्स मेंटेन सेल शेप। अब देखो ये वाला क्वेश्चन था ना, सेल वॉल में क्या था कि इट प्रिवेंट्स लिसिस, सेल लिसिस, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या है, इट प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑस्मोटिक स्ट्रेस, ऑस्मोटिक स्ट्रेस से क्या होगा, ऑस्मोटिक स्ट्रेस बढ़ा तो आपका सेल लिसिस हो जाएगा। नेक्स्ट इज कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर, थोड़ा बेसिक अपना दिमाग भी थोड़ा लगाना, ये नहीं कि एकदम रट के गए कि अरे उसमें तो लिखा नहीं था ऑस्मोटिक स्ट्रेस तो मैं कैसे मार्क करूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है वहां पे। कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर, इट इज यूज फॉर रेजिस्टेंस ऑफ फैगोसाइटोसिस और एडहेरेंस टू द सर्फेस, ठीक, किसके लिए, फैगोसाइटोसिस की रेजिस्टेंस के लिए, नॉट इट इज नॉट यूज्ड फॉर फैगोसाइटोसिस, इट इज यूज्ड टू फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ फैगोसाइटोसिस, एंड द अदर वन इज स्लाइम लेयर कैप्सूल का एडहेरेंस, किसी सरफेस पे आपको स्टिक करना है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टिक करना है, रुकना है, तो उसके एडहेरेंस के लिए स्लाइम लेयर और कैप्सूल का यूज होता है। नेक्स्ट इज फिम्ब्रे एंड पिलाई, इट इज यूज्ड फॉर द अटैचमेंट टू द सरफेस, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये ज्यादातर पिलाई के थ्रू होता है, एंड ट्विचिंग एंड ग्लाइडिंग मोटिलिटी किसके लिए थ्रू होती है, फ्लैचेला के, फिम्ब्रे और पिलाई के थ्रू, ठीक है। कौन सी, ट्विचिंग एंड ग्लाइडिंग, ऐसे ऐसे चल के, फ्लैचेला स्विमिंग एंड स्वार्मिंग मोटिलिटी, तैर के जाएगा, या स्वार्मिंग मीन्स दिस वे, स्वार्मिंग मीन्स दिस वे, तैर के ऐसे ऐसे, क्लियर। Next is endospore. Endospores, you know, they are used for the survival under harsh condition. ठीक है, unfavorable condition है माइक्रोब के लिए तो तब आएगा एंडोस्पोर। अब देखो नेक्स्ट
अब देखो बैक्टीरियल प्लाज्मिड के बारे में दिया, अब तो एकदम डिटेल में पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन, तो चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड दे दिया और उनका फंक्शन या उनका एग्जाम्पल या उनका फिनोटिपिक फीचर पूछ लिया, तो समझ लो अभी फंक्शन ही पूछ रहे हैं तो फंक्शन पे ध्यान दो। कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड का क्या काम है? कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर। रिमेंबर द वर्ड कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेट मतलब कि जुड़ना, ठीक, तो इट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर। एग्जाम्पल क्या होगा कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड का? एफ फैक्टर, ठीक। नेक्स्ट इज आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड इज यूज्ड टू कैरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है, कोई जीन है वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस उसने डेवलप कर ली, तो उस जीन को कोई भी ऐसा प्लाज्मिड नहीं लेके जाएगा। कौन सा प्लाज्मिड लेके जाएगा? स्पेसिफिक प्लाज्मिड इज आर प्लाज्मिड। एग्जाम्पल क्या है? RP4। अब मान लो कि क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा उन्होंने लेवल टफ कर दिया, तो RP4 प्लाज्मिड उन्होंने लिख के दिया एंड उसका फंक्शन मैच करने को दे दिया। अगर ये वीडियो देख लिया या चार्ट देख लिया है तो इजी क्वेश्चन हो गया ना। इट इज यूज टू कैरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, आपका ऑप्शन ठीक है, आपने मैच कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट इज कोल प्लाज्मिड। It is used for the production of bacteriocins, what a substance that destroy closely related species. इसको अब बैक्टीरियोसिन कौन प्रोड्यूस करता है? कोल प्लाज्मिड। एग्जाम्पल क्या है? कोल E1। नेक्स्ट इज विरुलेंस प्लाज्मिड। इट इज यूज्ड टू कैरी विरुलेंस जीन्स। एग्जाम्पल TI। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक प्लाज्मिड। इट इज यूज्ड टू कैरी जीन्स फॉर एंजाइम्स। जीन एंजाइम्स कौन लेके जाएगा? कौन सी जीन्स लेके जाएंगे? वो कौन सा प्लाज्मिड होगा जो उसको कैरी करेगा जीन्स को? दैट इज मेटाबॉलिक प्लाज्मिड। एंजाइम से है तो मेटाबॉलिक प्लाज्मिड, एक कुछ ना कुछ बना लो। एग्जाम्पल क्या है? कैम। क्लियर? ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट को स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, पढ़ लेना, जरूर पढ़ के जाना। ओके, ले लिया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऑर्गेनिल्स विथ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कौन से ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी इज लाइसोसोम एंड ऑप्शन डी इज राइबोसोम। करेक्ट आंसर किसमें होगा? हाइड्रोलिटिक लाइसोसोम में, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। क्वेश्चन 6, बैक्टीरियल लोकोमोशन इज अकम्प्लिश्ड बाय फिम्ब्रिया, फ्लैजिला, सी साइटोस्केलेटन, डी बोथ ए एंड बी। बताओ, अभी पढ़ा था ग्लाइडिंग मोटिलिटी फिम्ब्री और swirling and swimming motility by flagella, so your correct option would be option D, both A and B. Next question, fimbria are demonstrated by A, culture, B, gram stain, C, biochemical reaction, D, heme agglutination reaction. The correct answer for this question is option D, heme agglutination test. Question number 12, नहीं सॉरी, अब इधर इसमें देखना है। नाउ वी हैव मूव टू अ नेक्स्ट टॉपिक। ये तो उधर वाले पीछे तक का सारा हो गया आपका सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। अब 2 बार से देखा जा रहा है कि सेल वॉल पे चाहे वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की हो, ग्राम नेगेटिव की हो या आर्की बैक्टीरिया की, सेल वॉल के बारे में जरूर पूछ रहे हैं। मतलब देयर आर क्वेश्चंस, तो एक बार पढ़ लेते हैं सेल वॉल के बारे में थोड़ा। तो ग्राम पॉजिटिव माइक्रो बैक्टीरिया की जब सेल वॉल को आप स्टेन करोगे तो वो कौन सा कलर दे रहा है? इट गिव्स यू पर्पल कलर। ग्राम नेगेटिव रेडिश पिंक, ये तो पता है ग्राम स्टेन पे ग्राम पॉजिटिव पर्पल होते हैं और ग्राम नेगेटिव पिंक होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव जेनेरा ज्यादातर बैसिलस, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, इसमें इस्चीरिया, निजेरिया, स्यूडोमोनास, ये उसके एग्जाम्पल हो गए। अब डिस्टिंग्विशिंग स्ट्रक्चर्स एंड कंपोनेंट्स क्या हो गए दोनों में, वो देख लेते हैं। पहला है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिक लेयर होती है आपके ग्राम पॉजिटिव में और थिन लेयर होती है आपकी ग्राम नेगेटिव में। देखना इधर को,
या तो गूगल करके एक बार ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल का स्ट्रक्चर देख लेना। स्टिकोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव में, ओके, एंड इट इज एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव। अब आउटर मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट होता है? ग्राम नेगेटिव में। एलपीएस लिपोपॉलीसैकेराइड और एंडोटॉक्सिन किसमें प्रेजेंट होता है? ग्राम नेगेटिव में। पोरिन प्रोटीन्स इसमें एब्सेंट होते हैं बिकॉज अननेसेसरी, बिकॉज देयर इज नो आउटर मेम्ब्रेन। तो पोरिन प्रोटीन आउटर मेम्ब्रेन है, उससे चीजें आने जाने के काम में प्रेजेंट, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसलिए पोरिन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहेंगे बिकॉज इट अलाउस पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। पेरिप्लाज्म पॉजिटिव में एब्सेंट है, नेगेटिव में प्रेजेंट है। क्लियर? ये हो गई सेल वॉल आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की। अब आते हैं जो बैक्टीरिया और आर्की के बीच में डिफरेंस है उस पे। देखो, अब पहला हमारा प्रॉपर्टी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड। इन बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, ओके। तो कैसा है बैक्टीरिया में? इट इज ईस्टरलिंक फॉस्फोलिपिड, ठीक है। लिपिड बाइलेयर में ईस्टरलिंक फॉस्फोलिपिड एंड हॉप्नॉइड्स फ्रॉम अ लिपिड बाइलेयर। सम हैव स्टेरॉल्स, ठीक है। पहले तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरा क्या है? आर्की में ग्लिसरॉल कैसा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड इनका ग्लिसरॉल डाईथर्स फॉर्म लिपिड बाइलेयर। इसमें क्या था? ईस्टर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड्स थे और हैपेनॉइड्स थे। इसमें क्या है? ग्लिसरॉल डाईथर फ्रॉम लिपिड बाइलेयर एंड ग्लिसरॉल टेट्राईथर फ्रॉम लिपिड मोनोलेयर। इसमें समझ आ गया? ग्लिसरॉल डाईथर फ्रॉम लिपिड लेयर एंड ग्लिसरॉल टेट्राईथर फ्रॉम लिपिड मोनोलेयर। ये हो गया इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स में डिफरेंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन रहता ही है, और बाकी आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल अभी बता दी क्या क्या प्रेजेंट है क्या नहीं। अब आते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में, उसकी सेल वॉल वेरी डाइवर्स बट पेप्टाइडोग्लाइकेन इज ऑलवेज एब्सेंट। देखो, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन हमेशा रहेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पर आर्की में आपका पेप्टाइडोग्लाइकेन एब्सेंट रहेगा। नेक्स्ट, सम कंसिस्ट ऑफ एस लेयर ओनली, अदर कंबाइन एस लेयर विद पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन और बोथ। ये देखो, एस लेयर हो गया आपका, ये आर्की का है, ठीक है। ये देखो, आर्की बैक्टीरिया की तुम्हारी सेल वॉल है। ये हो गया एस लेयर, ये हो गया एस लेयर, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गया एस लेयर, स्यूडोम्यूरिन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक। ये तुम्हारा फॉस्फोलिपिड हो गया, लिपिड मेम्ब्रेन आर्कियल की, ईस्टर डाई लिंकेज है, ईस्टर से मिला ग्लिसरॉल से मिला, और ये तुम्हारा बैक्टीरिया का है। एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इंक्लूजन्स प्रेजेंट। अब ग्राम पॉजिटिव में क्या है? हाँ, इंक्लूजन है, यस। उस इंक्लूजन का नाम क्या है? गैस वैक्यूल। इसमें भी क्या है? इंक्लूजन प्रेजेंट है, वो भी गैस वैक्यूल है। राइबोसोम साइज क्या है बैक्टीरिया का? 70s है। आर्की बैक्टीरिया का क्या है? 70s है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। मोस्ट आर सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यूजुअली अ सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसमें भी सर्कुलर है, सारे सर्कुलर होते हैं और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। नेक्स्ट, प्लाज्मिड प्रेजेंट। प्लाज्मिड होता है कि नहीं? यस, होता है, सर्कुलर एंड लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और इसमें क्या है? प्रेजेंट है, पर सिर्फ सर्कुलर प्रेजेंट है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेम है दोनों के, फ्लैजिला फिम्बरी। इसमें फ्लैजिला, आर्की में क्या है? फ्लैजिला फिम्बरी प्लस पाइलस लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉमन। कैप्सूल्स और स्लाइम लेयर बनती ही है बैक्टीरिया में, और आर्की बैक्टीरिया में इट्स रेयर, ठीक है। इस चार्ट से बहुत हेल्प मिलेगी, ये क्वेश्चंस आते हैं। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है, सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है,
इनको तो एक दो बार अच्छे से पढ़ ही लेना कि हाँ दोनों में क्या क्या फर्क है और इसमें ग्लिसरॉल टेट्रा ईथर किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड में है, हाँ सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। So Nocardia species are amenable to a classical method of gram staining due to the presence of a N-acetyl N-acetyloaminouric acid in the cell wall, B thick peptidoglycan, C mycolic acid, D ketodeoxy octulosonic acid. The correct answer for this question is C mycolic acid. Next question. This is an MSQ type of question. You will have multiple correct answers. Which of the following are present in gram-negative bacteria? A. Lipopolysaccharide acid, B. Teichoic acid, C. Periplasm and D. Endotoxin. बताओ क्या क्या प्रेजेंट होता है? A. Lipopolysaccharide, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। पेरिप्लाज्म होता है, एंडोटॉक्सिन होता है। तो योर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, सी एंड डी। ऑप्शन ए, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज ऑल्सो MSQ. Which of the following statement are true for archaea? Option A, cell wall in archaea contains muramic acid and D amino acid. अभी पढ़ा था, नहीं होता है। N-formyl methionine is the first amino acid to initiate new polypeptide chain synthesis in archaea. नहीं, ये नहीं होता है। C, methionine is the first amino acid used during protein synthesis in archaea. ठीक। Next is membrane of archaea contains phytanyl rather than fatty acid. दो आपके करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11. Which part of the lipopolysaccharide has toxic properties that make some bacterial infections a potentially serious medical problem? Option A, polysaccharide side chain. Option B, lipid A portion. Option C, repeat carbohydrate units, and or option D, co-region of polysaccharide. The correct answer would be option B, lipid A portion. Next question, question 12. The cell wall deficient form of bacteria is A, mycoplasm, B, L form, C, protoplast, D, spheroplast. The correct answer is option B, L form. Question 13. The lipid content is more in A, gram-negative bacteria, B, gram-positive bacteria, C, same, D, none. The correct answer for this question is option A. Lipid content is more in gram-negative bacteria. Next question. The lipid content present in gram-positive bacterial cell wall is option A, 1 to 10%, option B, 1 to 5%, option C, 2 to 8%, and option D, none of these. The correct answer is option B, 1 to 5%. Next question. Teichoic acids are found in A, found in the cell walls of gram-positive bacteria. B, they provide receptor for phages. C, make up outer wall of gram-negative bacteria. Or D, influence the permeability of membrane. So correct
ग्राम नेगेटिव में तो देखो नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर वुड बी फाउंड इन द wall of gram positive bacteria. That was all for today. I hope you have learned something from this video. If you have learned something, please like the video, share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you. Have a good day.